فضل ربولا فضل ربولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے ماشاءاللہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے ماشاءاللہ ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے اور آخری شعر ملاحظہ فرمانا ہے اچھے بھائی بہت اچھے واہ 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 شاہ صاحب ہمارے میلاد خواہ حضرات بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں میں چل کے کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے بھیک دے کر مجھے میرے سرکار کا میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے فضل ربولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے ماشاءاللہ یہ جشن غوث الورا کانفرنس ہے جی یعنی یہ حضور غوث اعظم سے نسبت ہے اس کی اور انہی کے ذکر کو ہمیں عام بھی کرنا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سب کا ایک ہی موضوع رہے گا تو لہٰذا موضوع سے نہ گھبرائیں شخصیت کو دیکھیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا اعلیٰ حضرت نے بہت تعریف کی ہے اشعار پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن میں آپ کے حوالے کچھ درود پاک کی فضیلت بتا کر کے رخصت ہوں گا عزیزان ملت اسلامیہ ہمارا وقت ہمارا سب سے قیمتی وقت وہی ہوا کرتا ہے جس میں ہم ذکر اللہ کریں اللہ کا ذکر کریں نبی پر درود پڑھیں اور یہ محفل جو مولانا توصیف رضا صاحب نے بہت چند منٹوں میں آپ کو بہت کچھ بتایا یعنی انہوں نے ماں باپ کیسے ہونے چاہیے ماں باپوں کو اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے نماز کا شوق کیسا ہو ہمارے چلتے ہوئے حالات جوئے سٹے اور تمام عیاشی کی تمام باتوں کو کھول کر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں تو بہتر ہوگا تو یہ جشن غوث الورا سے آپ میسیج لے کر جائیں پیغام لے کر کے جائیں گے عزیزان ملت اسلامیہ بغداد کی سرزمین ہے کہاں کی بغداد کی سرزمین جس طرح سے نمازی اگرچہ غریب بھی ہو تو محلے میں اس کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ نمازی ہے اب وہ نمازی بغداد کی سرزمین پر رہتا ہے کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے بلکہ غوث اعظم کی سرزمین ہے عزیزان ملت اسلامیہ اگرچہ وہ نمازی تھا لیکن وہ غریب تھا مفلس ہے وہ نمازی ہے لیکن مفلس ہے عزیزان ملت اسلامیہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں بچے رو رہے ہیں بیوی بھی جو ہے اداس بیٹھی ہوئی ہے کہتی ہے شوہر 3 دن ہوئے ہیں ہم سب بھوک کے مارے جو ہے بھوک و پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں اللہ اکبر اس نمازی عاشق مصطفیٰ پہ قربان جاؤ باری پور بھمروا کے غیور مسلمانوں انہوں نے یہ کہا تھا اگرچہ 3 دن سے ہم بھوکے پیاسے ہیں تو ہم اپنی بھوک کو ہم کسی دنیا کے کھانے سے نہیں بلکہ نبی پر درود پڑھ کے نپٹائیں گے نبی کے پر درود پڑھ کے ہم اپنی بھوک کو بجھائیں گے یعنی کہ حلقہ ذکر کے لیے تمام بچوں کو لیا ہے بیوی کو لیا ہے اور بیٹھ جاتا ہے عاشق بغداد کی سرزمین پر اور کہتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں تصور میں درود پڑھی جا رہی ہے درود پڑھتے پڑھتے پورا گھرانہ بھوک کے مارے تڑپ رہا تھا اچانک سب کو نیند آ گئی ہے سب سو گئے ہیں اچانک یہ نمازی عاشق مصطفیٰ سویا تھا لیکن اگرچہ اس کی ماتھے کی
आंखें सो गई थी, मिच गई थी, लेकिन तकदीर की आंखें बुलंद हो गई थी। यानी देखता क्या है, ख्वाब में नबी तशरीफ लाए हैं, नबी अलैहिस्सलाम आते हैं। ऐ मेरे आशिक, तूने मुझ पर दुरूद पढ़ के अपने तमाम बच्चों को तसल्ली दी है, अपनी बीवी को तसल्ली दे के तूने 3 दिन के अपने प्यास और भूख को मेरी दुरूद से मिटाया है। बेफिक्र हो जा। और इसी बगदाद की सरजमीन पर एक मजूसी है, आतिश परस्त है, उसके यहाँ जाकर के कहना कि मुझे मोहम्मद अरबी मेरे आकाए करीम ने भेजा है। यानी मजूसी, तुम्हारे लिए जो दुआ हुई थी अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल हो गई है। ये सुनना था। आंख खुली है, आंख खुलने के बाद आशिक ने देखा, अल्लाह अकबर, कहा परवरदिगार आलम, नबी का ख्वाब है, सच्चा होता है, नबी की सूरत में शैतान भी नहीं आता, ये ख्वाब सच्चा है। लेकिन नबी ने मजूसी का जिक्र क्यों किया है, आतिश परस्त का जिक्र क्यों किया है? उससे हमारे नबी का मतलब क्या है, उससे हमारा मतलब क्या है? क्योंकि वो दीनी भाई नहीं है, इस्लामी भाई नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब इनकी दुआ रात दूसरे दिन आँख खुली, इसी कश्मकशी में सोए, फिर अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, कहा फिक्र मत कर, फौरन चला जा मजूसी के पास और जाकर कहना मेरे आका ने भेजा है। जो तेरे हक में दुआ के लिए कहा गया था, वो दुआ तेरे हक में कबूल हो चुकी है। इतना सुनना था। मुख्तसर बात ये है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस मुफ्ती साहब आएंगे, बस आपके सामने मैं थोड़ी देर रूबरू हूँ। ये सुनना था आशिक का। आशिक की आंख खुली, जो पता बताया गया मजूसी का, बगदाद की सरजमीन के अंदर, यानी वही उस जगह पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद मुफ्ती साहब आ रहे हैं, आप अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, बिल्कुल सुकून इत्मीनान के साथ आप हजरात जैसे बैठे हैं बैठे रहें, उलमा इकराम इस्तिकबाल कर लेंगे। नारा लगा लीजिए। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब के बाद तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरात सुकून इत्मीनान के साथ में नारा लगा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम अहमद साहिब क़िबला क़ादरी, मदाग़ रसूल नाम अफजल रज़ा रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, उलमाए इकराम हजरत का इस्तिक़बाल फरमा लेंगे। पूरी कर दूं बात भाई अपनी है नाजिम भाई, बात कर दूं पूरी जी। अच्छी हजरात, जो हमारे मेहमान खुसूसी, जिनके लिए ये सारा डेकोरेशन हम सब मिलकर इसको सजाया, वही शख्सियत अब हमारे मोहब्बत दयार में आ चुके हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला आपके मोहब्बत दरबार में आ चुके हैं। आप मैं बाहैसियत इमाम जामा मस्जिद आपसे गुजारिश करता हूँ कि अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, फ़ौरन पंडाल को पुर कर दें। जिस तरह से लोग बराह रास्त यानी लाइव हजरत को सुनना चाहते थे, वो अपनी पूरी शान व खिताबत के साथ जलवा फरोज़ हैं, अपनी कुर्सी पर मिंबर रसूल पर हैं। आप जहाँ कहीं मेरी आवाज़ सुनते हैं फ़ौरन पंडाल में आए। बस मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करके आपसे रुखसती लूँगा। दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मजूसी ने जब देखा कि अल्लाह के नबी ने 2 बार बशारत दी कि तुम चले जाओ, उनसे कहना कि तुम्हारे हक में जो दुआ मांगी गई है वो कबूल हो गई है। जब इस आशिक ने वहाँ जाकर के मजूसी के यहाँ कहा कि मैं अल्लाह के रसूल की तरफ से आया हूँ, मजूसी ने ये सुना, कहा तुमसे हमारा क्या रिश्ता है, हम तो उस मोहम्मद अरबी को मानने वाले नहीं है, हम तो दीन मुस्तफ़ा को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम पैगाम सुनाते हो नबी का जो अल्लाह के बेहतरीन नबी है। अल्लाह अकबर। ये
सुनना था, लेकिन अफसोस के साथ उसने कहा बस 1 मिनट अलग बात कर लो। बात करने के बाद उन्होंने कान में पूरे ख्वाब की बात बताई और बताने के बाद उसने कहा बस मेरी तन्हाई में चलो। तन्हाई में लेकर के जाता है वो पारसी आतिश परस और कहता है कि तुम्हें ख्वाब में क्या बात बताई गई। पारसी से कहते हैं वो आशिक मुस्तफ़ा कि ये कहा गया कि तुम्हारे हक में जो दुआ मांगी गई थी वो कबूल हो गई है। ये सुनना था और आंखों से आंसू जारी हो गए और कहता है कि ऐ मेरे बच्चों, चंद दिनों पहले उसके घर में उसकी बेटी की शादी थी। उसकी बेटी बेटों को बुलाता है, एक बेटी है एक बेटा है, तमाम बड़ा ताजिर है आतिश परस, लेकिन बुलाने के बाद कहता है तमाम मेरे ताजिर लोग जितने भी तिजारत मेरे साथ करते हैं वो मेरे दरमियान में आए। अपने बच्चों को बुलाता है और कहता है ऐ बच्चों, जो अल्लाह के महबूब की तरफ से यानी मुझे ये दावत दी गई कि तुम्हारे हक में दुआ कबूल हुई है, अगरचे ये आशिक न जानता हो, मैं जरूर जानता हूँ मेरे हक में क्या दुआ कबूल हुई है। और जो दुआ कबूल हुई है उसकी वजह यह है कि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। यानी आतिश परस ने कलमा पढ़ा, अपने बच्चों से कहा प्रॉपर्टी चाहते हो तो मेरे साथ मुसलमान हो जाओ। बच्चों ने कहा बाप, जब तुम तो आतिश परस थे तब हमारे बाप थे, जब तुम आतिश परस थे जब हमारी माँ थी। जैसे मेरे माँ बाप जो है मुसलमान हुए हैं, इसी तरह बच्चे भी मुसलमान हो गए। तमाम जितने ताजिर थे सब मुसलमान हुए। लेकिन वो आशिक मुस्तफ़ा कहता है ये तो समझ में आ गया कि नबी ने तुम्हारे यानी खबर देने के लिए मुझे भेजा है, लेकिन ये तो बता दो कि दुआ कौन सी कबूल हुई है, इस बात को तो खुलासा करो। आतिश परस कहता है कुछ दिनों पहले मेरे घर में मेरी बच्ची की शादी थी। मेरी घर के बाजू की करबट में यानी मेरे मकान के बाजू में मेरी करबट में मेरे पड़ोसी सैयद आले रसूल रहते थे। जब मेरे घर में बेहतरीन फंक्शन को रचाया गया, बेहतरीन फंक्शन मनाया गया, अल्लाह अकबर, यानी कि जब फंक्शन से लोगों ने खाना भी खाया और वीरान भी किया तो एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। बच्ची अपनी माँ से कह रही थी ऐ मेरी माँ, हमारे पड़ोस में सारी दुनिया ने खाना खाया, सारे इलाके ने खाना खाया, खाना कुत्ते भी खा रहे हैं, खाना जानवर भी खा रहे हैं, इंसान भी खाना खा करके शराब हो गए हैं, लेकिन मेरी माँ हम 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, इस पड़ोसी ने हमारी दावत न की है। ये उसने कहा। पर वो आतिश परस जब वो कहता है ये मैं अपने छत जो है छत पर अपने मकान की ये आवाज सुन रहा था। बच्ची रो रही थी, कहती है माँ हम 3 दिन से भूखे थे, लेकिन हमारी इसने न दावत की न पड़ोसी का हक निभाया है। उसकी माँ कहती है, वो सैयदा कहती है कि बेटा वो आतिश परस्त है, हमारी दावत क्यों करेगा। इतना सुनना था, ये उसकी दिल की दुनिया बदल गई। अपने घर की छत से नीचे आया, बीवी से कहा जो खाने में है फौरन पार्सल कर दो, हमें भूल हुई है, हमारी करबट में नबी के यानी शहजादी और शहजादे रहते हैं, हमारे घर दुनिया ने खाया, लेकिन हमारे पड़ोसी 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। ये सुनना था और अपने घर से पार्सल खाना करा के आतिश परस्त लाए हैं। आपको जहन देना चाहता हूँ, इस बात का यानी हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जब दुखों ने घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जब मुसीबतें घेरे तो दुरूद पढ़ो। मेरे वो दोस्तों और बुजुर्गों, जब आतिश परस ने सुना और जब गया है करीब आतिश परस यानी मकान के बाजू की करबट में पड़ोसी सैयदजादों के घर खाना पार्सल लेकर के गया है और कहता है ऐ मेरे पड़ोसियों, तुम अलग के तुम उस नबी के शहजादे हो जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन भूल हुई है, हमने तुम्हारी दावत नहीं की है। लेकिन मैंने ये आवाज अपनी बच्ची के इस बच्ची के कानों से या अपने कानों से इस बच्ची की आवाज को सुना था। ये कह रही थी 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे ये बात गवारा ना हुई और मैं ये खाना लेकर के आया हूँ। खाना लिया है, बच्ची माँ के चेहरे पे खुशी के जो है आसार आ गए और ये कहता है आतिश परस्त, जब मैं खाना देकर विदा हुआ हूँ वापस आया हूँ तो मैं बाजू में खड़ा हो गया था, मकान के यानी चौखट के बाजू में खड़ा हो गया, यानी किवाड़ की आड़ में खड़ा हो गया। तो बच्ची माँ से कहती है ऐ माँ, जिस आतिश परस्त ने हमारा 3 दिन का भूखा प्यासा यानी फाका दूर किया हो तो उसके हक में दुआ किया की जाए। ये बच्ची माँ से कह रही थी और हाथ उठाकर कह रही थी हम जिस मोहम्मद की उम्मत में है या रसूल अल्लाह, तुम इसे कलमा पढ़ा के इसकी शफाअत फरमा दीजिए, ये
اس کی دعا تھی، اور جو آتش فرس نے یہ عاشق سے کہا تھا کہ تم سے جو اللہ کے نبی نے خواب میں کہا ہے، یہ دعا وہ تھی جو ان کی شہزادی نے مجھے دی تھی، اللہ نے مجھے قبول کر کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج، یہ ساری کت تھی یا رسول اللہ، ایک تمہاری سیدھی نظر کی ہے۔ تو میرے پیارے، ہمیں اپنے ہر وقت کو قیمتی بنانا ہے، اپنے وقت کو ذکر اللہ میں گزارنا ہے۔ تو انشاءاللہ سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نبی فرماتے ہیں جو 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے 70 حاجتیں روز محشر پوری ہوں گی، 30 حاجتیں دنیا میں پوری ہوں گی۔ تو میرے پیارے، ہمیں سب کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جو ہے اس جشن کا، جشن غوث الورا کا مقصد یہی ہے۔ جو مفتی غلفام صاحب بھی آپ سے مخاطب ہوں گے تو یہ بھی اپنی بات کو یہی رکھیں گے کہ سب کا یہی قول ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔